Our next topic is mixture. Mixture is a substance which consists of two or more than two different substances which are not chemically combined, and the composition is also not fixed. देखिए हमने कंपाउंड में क्या किया था. इन कंपाउंड वी स्टडीड it consists of two or more than two elements which are chemically combined and present in a fixed composition. But in mixture, opposite to that, उसी का opposite है. It consists of two or more than two substances which are not chemically combined, and the composition is also not fixed. Composition भी fixed नहीं होती. It can be separated by any physical processes like evaporation, boiling means filtration. इन प्रोसेस से आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं. तो सिंस व्हाट इज मिक्सचर, इट इज द substance in which two or more than two different substances they are mixed physically and they do not have any chemical composition, means they do not have any chemical change, they do not undergo the chemical change, only physical change is there. So mixture की definition में आप क्या कहेंगे? If you have to write the definition of mixture, it is a substance which consists of two or more than two substances which are not chemically combined and the composition is also not fixed. For example, the mixture of common sugar and water, mixture of common salt and water, mixture of sand and water, and perhaps you are known about alloys. Alloys, that is the mixture of a metal with other metals or non-metals. Metal, one metal का another metal and non-metal के साथ mixture होता है, that is alloy. Just like brass, पीतल जो होता है घरों में, that is mixture of copper and zinc. There may be mixture of various substances in our home, mixture of different oils. A hair oil consists of mixture of various substances. No chemical change is there, and the constituents always show the properties. In compound, the constituent do not show the properties, but in mixture, the constituents show their own properties. वो अपनी properties show करते हैं. So what are the major characteristics of mixture? Mixture may be homogeneous, may be heterogeneous. दोनों टाइप का हो सकता है. May be homogeneous and heterogeneous, दोनों टाइप के हो सकते हैं. Composition is not fixed. Composition is always variable. All constituents of a mixture, they show their own properties. वो अपनी अपनी property show करते हैं. Just like if we add sugar in water, sugar show its property, that is sweetness. Water show its property, that it is liquid. Both are showing their own properties, and these can be separated by physical processes like evaporation, maybe centrifugation, maybe filtration, like that. By these processes it can be separated, and the melting and boiling point, that is not fixed. It depend upon the composition. कितने constituent आपने ऐड किए उसके ऊपर उसका boiling point या melting point डिपेंड करता है. तो मेजर करेक्टरिस्टिक हैं. वन इज होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं. कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन होती है. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, मे बी मैग्नेटिक सेपरेशन. व्हेन मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, जनरली नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस, मीन्स एनर्जी generally not absorbed or given out. Not always, generally no change in the proper energy take. Melting and boiling point, that is also not fixed, variable. On what factor the melting and boiling point of the mixture depend? The melting and boiling point of mixture depend upon the composition of the constituents. If some constituent is more, then melting point is according to that. And in mixture, the constituent, they show their own properties, means properties in mixture are retained. So what is the difference between the properties of compound and mixture? In compound,
कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, मिक्सचर में भी होमोजीनियस, में भी heterogeneous. Compound cannot be separated into its constituent by physical processes like boiling, evaporation, filtration. By these processes, constituent of compound cannot be separated, but the constituent of mixture, they can be separated by these processes like filtration, evaporation and sublimation. इनसे separate हो सकता है. Sublimation may be new for you, इसी चैप्टर में हम करेंगे at the end of this chapter. When a compound is prepared, energy is either absorbed or given out, means change in energy take place. But when mixture is prepared, usually no change in energy take place. In compound, melting and boiling point is fixed, but in mixture, melting and boiling point is not fixed, it is variable because its composition is variable. In compound, constituents do not show their properties, means properties of constituents are not retained, वो रहती नहीं है, that is changed, new properties हो जाती हैं. But properties of component retained remain as it is in mixture. These are the major differences. When formation of chemical compound take place, always chemical composition, chemical reaction take place. But when formation of mixture take place, no chemical reaction take place. कोई chemical reaction नहीं होते. Now the type of mixture. There are two basic type of mixture. Mixture दो main तरह के होते हैं. One is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. आप देखिए सभी ने वाटर के अंदर कॉमन शुगर या सॉल्ट डाल के देखा है. आफ्टर डिसॉल्विंग व्हाट अपीयर? नथिंग. यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है. Such type of mixture, that is homogeneous mixture. And if we add sand in it, sand in water, then sand appears separately. There are different layers, different composition is visible. That is heterogeneous. जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट दिखें आपको, यूनिफॉर्म ना हो, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा ना हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. एंड जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. वी कैन शो बाय सिंगल मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. हाउ इट इज, कैसे शो कर सकते हैं? जस्ट लाइक वी टेक वाटर, हम वाटर ले लेते हैं. कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ इसको खोलो. वी टेक वाटर, and now we prepare the mixture. It is mixture, only one, only. We take only 2 crystals of potassium permanganate. ये पोटेशियम परमैंगनेट है. पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल लेते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं. आप देखिए इसके अंदर you can see movement is there and it is mixing with water. मिक्स हो रहा है ये वाटर के साथ. देखिए मैं इसमें भी शो कर देता हूँ कि it is mixing. डिफरेंट शो हो रहा है आपको अलग अलग. इट इज स्टिल हेड. अभी जो है ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. बिकॉज इट इज बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर देयर. अलग अलग बाउंड्रीज है, अलग दिख रहा है आपको, सेपरेट दिख रहा है. दैट्स वाई ये क्या है? हेट्रोजीनियस है. अभी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस
हो जाएगा, अभी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि नीचे जो है कंपोज ज़्यादा है, ऊपर वाटर में इतना पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। तो ये जो आपको बिल्कुल अलग से विजिबल हो रहा है, तो ये चीज़ मैं आप इसके अंदर भी शो करता, हमें अलग से विजिबिलिटी है इसकी कि देखिए बिल्कुल अलग विजिबल बाउंड्रीज दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर कंसंट्रेशन कम है। इफ़ वी डिज़ोल्व इट, अगर हम इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर दें इसके अंदर, आफ्टर डिज़ोल्विंग हम इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद कंपोजिशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, होमोजीनियस है। जब तक इसकी कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होगा तो कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म नहीं होगी। आप देखिए अभी तक भी ये डिज़ोल्व नहीं हुआ है, बॉटम के अंदर है इसमें, तो इसका मतलब ये जो नीचे हाई कंसंट्रेशन है ऊपर कम है, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। बट व्हेन इट विल डिज़ोल्व कंप्लीटली, जब अभी इसके अंदर देखो दिख रहा है आपको डिज़ोल्व होता हुआ मूवमेंट क्लियर कट, और ये मूवमेंट दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, इट इज़ हेट्रोजीनियस। बट व्हेन इट विल डिज़ोल्व कंप्लीटली, जब पूरी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाएगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन है नीचे से लेके ऊपर तक, इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस। शुगर वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या होती है, होमोजीनियस हो जाती है। जब तक वो डिज़ोल्व नहीं है तब तक वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है, बिकॉज उसकी जहाँ पे शुगर होगी वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी जगहों पे कम है, तो वो हेट्रोजीनियस है। बट व्हेन शुगर डिज़ोल्व कंप्लीटली, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, देन इट बिकम होमोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आगे हम सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ऑन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन करेंगे, तब आपको क्लियर कट बताएंगे कि इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो सिंस व्हाट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture is that mixture in which the boundaries of separation are there, which is not uniform throughout, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture the compound are not completely dissolved, that is heterogeneous mixture. यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। सॉलिड को सॉलिड में ले सकते हैं आप, यू मे मिक्स विद एनी काइंड ऑफ पल्सेस, दाल जिसको बोलते हैं, विद सम अदर काइंड ऑफ द पल्सेस, हेट्रोजीनियस है, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है ना। यू मिक्स राइस विद सम अदर ग्रेन लाइक व्हीट, दोनों को मिक्स कर दीजिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आपको अलग अलग दिखेंगे वो। बट व्हेन वी डिजोल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, दैट मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हमने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर वन टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमने टू क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। कौन कौन से, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो अब उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन, a solution that is homogeneous mixture and all mixture, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ पहले इसमें अलग से। all mixture they are classified into three main classes. One is true solution, another is colloids, one is true solution,
number 2 colloids, and number 3 suspension. ये 3 होते हैं. On what basis these are classified? देखिए, जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम, that consist of 2 components. एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूशन that consist of 2 components. That is, one is solute and another is solvent. ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट इज व्हाट? which is dissolved into another, which is dissolved into solvent, that is solute. Solvent is what? Which dissolve the solute inside it. For example, if we are dissolving sugar in water, then sugar is solute and water is solvent. If size of the solute particle after dissolving is up to 1 nanometer, then solution is known as true solution. Size of solute particle after dissolving is up to 1 nanometer, means 1 nanometer or less than it. 1 nanometer is what? 1 nanometer, it is equal to 10 raised to power minus 9 meter. Very, very small. Cannot be seen with powerful microscope also. माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता. आप चाहें कि आपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और आप किसी माइक्रोस्कोप में देखना चाहें, इट कैन बी सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट जनरल जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सी दैट, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है कि रेजोल्यूशन पावर जो है क्या होती है, 2000 3000 तक होती है, और ये 10 रेज़ टू पावर 9, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 9 नैनोमीटर, या आप यूँ कहिए कि 1 नैनोमीटर का साइज 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर, वेरी वेरी स्मॉल. उससे तो 10 लाख टाइम छोटा है, और भी जो इनकी रेजोल्यूशन पावर होती है, जो कॉमन माइक्रोस्कोप है, तो दिखेगा नहीं, वेरी वेरी बहुत ही स्मॉल. Since if the size of solute particle in mixture is up to 1 nanometer, up to 1 nanometer means 1 nanometer maximum or smaller than that, then it is true solution. उसको true solution बोलते हैं. That is actually homogeneous. वो homogeneous होता है. तो since what is a true solution? A solution which consists of size of solute particle up to 1 nanometer, then it is known as true solution. You may note it, नोट कर लीजिए आप इसको. ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन को हमने वो करना क्या है. जनरल बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. बट व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच size of solute particle is up to 1 nanometer, then it is known as true solution. What are the component of solution? हम true solution की बात आगे करेंगे. अभी ये मैंने बीच में आपको वैसे बता दी, एक जनरल बात बताई थी. तो सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें 2 सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, वन इज solute and another is solvent. The components of the solution, they are the solvent and solute.
what is solvent and what is solute? Solvent is that component of solution in which other substances are dissolved, जिसमें दूसरे substances को क्या किया जाता है, dissolve करते हैं. That is known as solvent. Solvent is usually liquid, not 100. All that is not a condition. Usually it is in liquid state, and amount of solvent is large. ज़्यादा हो. For example, water act as solvent because water dissolve other substance. Solute, the component of solution which is in very small amount, जो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, and it is dissolved into solvent. तो आप सिंपली क्या कहेंगे, what is solute? A substance which is dissolved into solvent, that is known as solute. And solute is generally in little amount, may be solid, may be liquid, may be gas. तीनों में से कुछ भी हो सकता है. For example, if we dissolve sugar in water, then sugar is solute and water is solvent. Clear? जितने भी solution होते हैं, they are of two type. Again classified into two. One are aqueous, another are non-aqueous. देखिए अभी आपको सिर्फ solution में बताई जा रही बात. ये solution होता क्या है? एक मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर के टू कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट यूजुअली वाटर होता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सॉल्वेंट वाटर ही होगा, अदर देन वाटर भी हो सकता है. अब सॉल्वेंट वाटर है, ऐसे सॉल्यूशन को तो हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन. So all solution they are classified into two classes. One are aqueous solution, another are non-aqueous solution. Aqueous solution are those solutions in which water act as solvent. जिसमें water as a solvent act करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, aqueous solution. आप aqueous solution के example दे सकते हैं, common sugar and water, common salt and water. बिकॉज सॉल्वेंट तो वाटर ही रहेगा, सोल्यूट चेंज हो सकता है. अभी हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होमोजेनियस, ये कैसा है, एक्वस और नॉन एक्वस? एक्वस, बिकॉज इट इज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर. पोटेशियम परमैंगनेट इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, सो इट इज एक्वस सॉल्यूशन. Non-aqueous solution, that type of solution in which solvent is not water, जिसमें solvent जो है water नहीं है, that is known as non-aqueous solution. Because aqua word stands for water. This aqua word जो है किसके लिए water stand करता है, that is for water. A solution in which solvent is water, then it is aqueous solution, and a solution in which water is not act as solvent, then it is non-aqueous solution. अब non-aqueous solution का example, जनरली हमें तो aqueous solution का ही पता है, यूजुअली डेली लाइफ में हम घरों में aqueous solution प्रिपेयर करते हैं. बट non-aqueous solution में क्या हो सकता है कि अगर हम घर में बात करें, इन एनी ऑयल इफ वी डिजोल्व समथिंग देन इट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. घी में किसी चीज को आपने मिक्स करके रख दिया, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, CH2, एंड एनी सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, जस्ट लाइक सल्फर उसमें डिजोल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में वाटर में डिजोल्व ही नहीं होता. सिंस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज नॉन एक्वस, इसमें वाटर नहीं. इफ वी डिजोल्व आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 में आयोडीन डिजोल्व कर देते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. सुगर डिजोल्व इनटू एल्कोहल, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है. एल्कोहल
इथानॉल, दिस इज, ये अल्कोहल है, इसमें मिथाइलेटेड इथानॉल है, ये मतलब पॉइजनस है। सिप्रिट लैंप में सिप्रिट जिसको बोलते हैं, दैट इज दिस सिप्रिट है, ये सिप्रिट में अल्कोहल ही होता है। हम जो हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, दे ऑल आर अल्कोहल, वो सारे अल्कोहल हैं। तो हम अल्कोहल के अंदर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नॉन एक्वस। तो इस तरह से सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशन दे आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस कौन सा? इफ वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट देन इट इज एक्वस, एंड अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट एज ए सॉल्वेंट देन इट इज नॉन एक्वस। आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, टू एक्वस के और टू नॉन एक्वस के। नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। अब जो हम बात कर रहे थे, सॉल्यूशन तो सारे हैं, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे और वो केमिकली कंबाइन नहीं है तो वो सारे क्या हैं? सॉल्यूशन है, मतलब मिक्सचर। और उसका हमने स्टडी किया कि उसके अंदर टू कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। आपको सोल्यूट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सॉल्वेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड फिर आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जांपल देके कि वाटर के अंदर हमने शुगर डिजोल्व कर दी तो शुगर सोल्यूट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इफ़ सॉल्वेंट इज़ वाटर तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एंड इफ वाटर इज़ नॉट एज ए सॉल्वेंट देयर तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जितने भी सॉल्यूशन होंगे यानी मिक्सचर, दे आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल they are classified into, not into, they are into three parts, three parts में classify कर देते हैं उसको on the basis of size of solute। one is true solution जो actually homogeneous होता है, हमने homogeneous and non homogeneous यानी heterogeneous दो ही classify किया ना, एक homogeneous दूसरा heterogeneous। homogeneous एक्चुअल में कौन सा होता है? ट्रू सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनके अंदर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बेस पे बात करें तो 10⁻⁻⁹ मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, वो सारे के सारे कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। और जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर तक होगा वो क्या होंगे? ट्रू सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस। अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि हमने ऐसे क्लासिफाई किया था कि जितने भी मिक्सचर हैं उनको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। वन इज होमोजीनियस एंड अनदर किस में किया था? हेट्रोजीनियस में शॉर्ट में लिख देता हूँ। होमोजीनियस की एक ही टाइप है, कौन सी? ट्रू सॉल्यूशन। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे वो होमोजीनियस होंगे। और हेट्रोजीनियस को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, कोलोइड्स एंड कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये होता है। अब हम 1 बाय 1 इन 3 टाइप्स को, मतलब वैसे सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। बट जब साइज ऑफ सोल्यूट की बात आ जाती है तो हम उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 3 में, जिसमें साइज 1 नैनोमीटर तक है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक है कोलोइड्स, और जिसमें 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है सस्पेंशन। 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। इफ साइज इज अप टू 1 नैनोमीटर देन इट इज ट्रू सॉल्यूशन। इफ साइज इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं। एंड इफ साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, अब आप देखिए व्हाट इज अ ट्रू सॉल्यूशन।
A true solution is the homogeneous mixture. कंपाउंड भी होमोजीनियस होते हैं और सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन भी जो है क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं. बट इट इज मिक्सचर एंड कंपाउंड इज नॉट अ मिक्सचर. इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं है बट साइज जो है वो वेरी स्मॉल है. इट इज ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर in which size of solute particle is up to 1 nanometer or less than क्या 10 raised to power minus 9 मीटर. 10 raised to power minus 9 मीटर कह दीजिए और चाहे क्या कह दो 1 नैनोमीटर. If size of solute particle is up to this, बस इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, then it is true solution. What are the characteristic? It is homogeneous. Particles of the true solution that cannot be seen even through powerful microscope. Powerful microscope से भी आप इनको नहीं देख सकते. They never settle down on keeping. हम इसको छोड़ दें तो नीचे नहीं बैठेंगे. Because particle is so small कि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आता ही नहीं. नीचे सेटल डाउन कौन होते हैं, जिस पे ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट आएगा. दीज आर सो स्मॉल, सो लाइट, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इवन. तो दीज डू नॉट सेटल डाउन. व्हेन पास थ्रू फिल्टर पेपर दे पास, मतलब दीज पास थ्रू फिल्टर पेपर. अगर आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाएंगे. These do not scatter the light. बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते. इसमें से लाइट एज इट इज विदाउट एनी स्कैटरिंग, बिना फैले पास हो जाती है. बिकॉज साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल. मेन पॉइंट है ये, ध्यान रखिए आप. क्या साइज, पहली बात आपने पॉइंट फर्स्ट लिखना है, साइज की बात. कैरेक्टरिस्टिक में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज less than 1 nanometer. They pass through filter paper. Do not scatter the light. Do not settle down on keeping. रखने पे नीचे नहीं बैठते. And these cannot be seen even through powerful microscope. उसमें से भी आप इसको नहीं देख सकते. It is transparent because solute का साइज बहुत स्मॉल होता है. ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट हो सकते हैं, बट if सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तो ट्रांसपेरेंट होगा. तो ये इसके मेजर डिफरेंसेस हैं. इसके बाद जो है नेक्स्ट, हाँ इसमें आप एग्जांपल दीजिएगा. ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप? कॉमन शुगर एंड वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, लाइम वाटर सस्पेंशन होता है, कोलोइड्स होता है, मिल्क. नाउ इसके बाद कोलोइड्स आएंगे, बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे सिलेबस में. वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर. मिक्सचर में ऑलवेज हम क्या करते हैं, वन सब्सटेंस को अनदर में डिसोल्व करते हैं. जब वो मिक्सचर प्रिपेयर होता है और मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, आपको पता है. अब कितना किसी मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए उसमें कितना सोल्यूट ऐड किया गया है, ये उसकी कंसंट्रेशन होती है. दिस इज नॉट ए एक्चुअल डेफिनेशन. आपको बता रहा हूँ, 9th में एक्चुअल है ही नहीं. एक्चुअल डेफिनेशन तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, बिकॉज वो मोल के ऊपर डिपेंड करती है. और मोल का इंट्रोडक्शन आप 4th चैप्टर में करेंगे. बहुत थोड़ा सा है. मोल इज ए क्वांटिटी. तो एक जनरल डेफिनेशन है यहाँ पे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, ये कंसंट्रेशन. हमने एक मतलब टी प्रिपेयर की, उसमें शुगर डाले, क्या कमेंट मिलते हैं शुगर के ऊपर? आप शुगर मतलब मीठा ठीक है, कम है, चाशनी बना रखी है, ऐसे कमेंट आते हैं. चाशनी बना रखी का मतलब क्या है? शुगर बहुत ज़्यादा है. कम है यानी शुगर कम उसमें डाली गई. वो कितनी शुगर है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वही कंसंट्रेशन है. मतलब चाशनी बना रखी है, ज़्यादा शुगर डाल रखी है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज हाई. फिक्की है, मज़ा ही नहीं आया. कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज
less. So how much is the solute present in a given solvent, given solution? That is the concentration. उसको concentration बोलते हैं. अगर solute ज़्यादा है concentration high, solute कम है concentration कम. So concentration is the amount of solute present in given amount of solution. That is known as concentration. And it can be calculated by various ways. In your notes 9 or 10 ways are given, but in our 9th, according to class 9, 3 ways are there. वो बाकी नहीं आएंगे, they are for your knowledge only. First 3 जो हैं, concentration, mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by volume percentage. These are in our syllabus. Concentration को एक्सप्रेस करने का मेथड क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेथड होता है परसेंटेज मेथड. एंड देयर आर 3 फॉर्मूला फॉर परसेंटेज मेथड. नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज. ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन जो है ऑलवेज कैलकुलेट करने के लिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व होता है इस बेस पे कैलकुलेट करते हैं. मास बाय मास परसेंटेज मीन्स मास ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन ग्राम्स एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम. ध्यान रखिएगा, मास ऑफ क्या है? सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा? सॉल्यूशन बनता है किससे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सिंस इफ यू आर नॉट गिवन सॉल्यूशन और आपको सोल्यूट पता है और सॉल्वेंट पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा. समझ रहे ना आप बात? क्या आपको डिनोमिनेटर में ऑलवेज सॉल्यूशन रखना है और सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, दोनों को ऐड कर देना, वो हो जाएगा. क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे इस पे, इस करके बता रहा हूँ. न्यूमेरिकल अभी मैं करवाऊंगा इसके साथ ही. मास, सोल्यूट भी मास में और सॉल्यूशन भी मास में, तो मास बाय मास परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम का मतलब सोल्यूट तो हमने मास में ले लिया, ग्राम में ले लिया, और सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम में लिया. कैलकुलेशन का मेथड क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. और इफ यू आर गिवन सोल्यूट का मास गिवन है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. या दोनों की वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होगी, मास ग्राम में गिवन होगा. नाउ हाउ टू कैलकुलेट, देखिए इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वो देखिए. यू आर गिवन अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. इसका मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज सोल्यूट. तो व्हाट विल यू राइट? मास ऑफ सोल्यूट, that is 40 gram. A solution consists of 40 gram of common salt in 320 gram of water. What do you mean by this? Solvent. Water के अंदर है, इतना water है, so mass of solvent is what? 320 gram. So mass of solution कितना होगा? हमें तो mass of solution चाहिए ना. आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन. सो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट? 40 प्लस 320, इट इज इक्वल टू 360 ग्राम. ठीक है ना. तो अब मास परसेंटेज क्या आ जाएगी फिर? मास परसेंटेज
व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला आपने रिप्रेजेंट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में होता है. सो व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट, 40 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9, 100 upon 9. What do you mean by this? 11.1%. Any doubt? कर लेंगे ना आप? पक्का? श्योर? देन आज के लिए इतना ही काफ़ी, बट